We can start. It's connecting to the Facebook. Shall I? Yeah. Okay. Good evening, everyone. On behalf of Maja House, I welcome all of you to today's session of Sanjha Punjab. Sanjha Punjab is a unique initiative of Maja House where we celebrate the rich shared cultural heritage that thrives across the two borders. Borders are strange things. मुल्क तकसीम हो जाते हैं, पर दिल नहीं बटते. गुलजार साहब ने एक बार कहा था, लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ कर गुस्से में आकर खींच दी थी शायद. इन्हीं को अब बनाओ पाला और आओ कबड्डी खेलते हैं. लकीरें हैं तो रहने दो. सांझा पंजाब के जरिए हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं. Transcending these lines, we are bringing together poets and artists from both sides and initiating conversations and discussions. We have celebrated Heer, Baba Bulle Shah, Allama Iqbal, Faiz Ahmed Faiz, and many other artists and poets. And today, we are talking about Nasir Kazmi, a much celebrated and beloved poet of Urdu. Hosting today's session is Dr. Arvinder Chamak, who, as you all know, is a member of Maja House and is an actor, a writer, a poet, sculptor, and much more. Over to you, Dr. Chamak. Thank you, Dr. Gurpratap. खुशामदीद जी आयां नू इस्तकबाल तुहाडे सारियां दा इस माझा हाउस दे वेड़े दे विच सांझे पंजाब दी इस बैठक दे विच इस खूबसूरत शाम इस नवे साल दी नवी किरण तुहानू सारियां नू मुबारक. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਫ ਦ ਲਾਈਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਇਸ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖੁਆਹਿਸ਼, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ, ਕਲਚਰ, ਹੈਰੀਟੇਜ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਸਾਂਝਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਰਚਮ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ. ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਸਿਮ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਸਿਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਸਿਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ. ਇਸ ਨਾਸਿਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੁਜੋਤ ਕੌਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਵਾਂ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪਰਚਮ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਅਸੁਰਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਬਾਇਸ ਇਹ ਫਖਰ. ਕਾਸਿਮ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ. ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਟੂ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਫॉर द ਲਾਸਟ 35 years. तो जे मैं बड़े सगीर की गल करा तो बड़े सगीर तो बाहर निकल के यूरोप की, अमेरिका की, कैनेडा की और पाकिस्तान की केड़े मुल्क ने जिथे इन्होंने अपनी काबलियत का परचम नहीं फैलाया. कॉर्नल यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाई ने, आप हिंद पाक टूरिज्म एंड कल्चर की जी टास्क फोर्स है वो मैंबर ने, साथ दे विच रिप्रजेंट करते हैं पाकिस्तान को टूरिज्म के उत्ते, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रेजिडेंट ने जियोथ इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर दे. तो मैं जिस इस तो भी बड़ी गल कहां कि ये सारिया चीज़ां बहुत छोटियां ने,
बाइज़े खुद एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, एक बहुत ही प्यारी रूह और एनवायरनमेंट लिटरेचर म्यूजिक पोइट्री ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਾਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਸਿਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਚੁਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਿਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਨ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ खूबसूरत पोएट ने एक खूबसूरत हस्ती ने कहते हैं कि दिल लगा लेते हैं अहले दिल वतन कोई भी हो दिल लगा लेते हैं अहले दिल वतन कोई भी हो फूल को खिलने से मतलब है चमन कोई भी हो सो बासिर साहब तुहाडा इस्तकबाल खुशामदीद बहुत इज्जत अफजाई बहुत शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गला मेरे बात नहीं बहुत शुक्रिया अनुजोत जिस तरह मैं पहला दसिया कि ये साइंस टीचर ने जी पंजाब बोर्ड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਨੂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ਼ਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਔਰ ਅਨੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਲਬਮਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਸਿਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂਪਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਕਾਸਿਮ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਟ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਚੈਟ ਓਪਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਾ ਪਵੇ ਜਦੋਂ ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਦੀਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो वाह गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो वाह सुभान वाह नासिर काज़मी साहब की बात कर रहे हैं जी जो 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला में पैदा हुए और तकसीम के आसपास लाहौर आ गए लेकिन अम्बाला उन्हें भूला नहीं उनका एक शेर है कि अम्बाला एक शहर था सुनते हैं अब भी है अम्बाला एक शहर था सुनते हैं अब भी है मैं हूँ उसी लुटे हुए करिए की रोशनी कहते हैं मैं हूँ उसी लुटे हुए करिए की रोशनी तो आपने देखा कि यू कैन टेक द पोएट आउट ऑफ द सिटी you can't take Ambala out of the poet. no. Still with it all the way. लाहौर में उन्होंने ऐसा दिल लगाया कि लाहौर ने उनके पाँव भी पकड़ लिए और दिल को भी जकड़ दिया क्या बात और इंतज़ार हुसैन साहब के साथ
इज़हार हुसैन साहब अपने ज़माने के सबसे बड़े उर्दू शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और नॉवलिस्ट थे, और इन दोनों की बहुत दोस्ती थी। और पाक टी हाउस जो कि एक बहुत पुराना टी हाउस है, तो ये लोग आखिर तक बैठे रहते थे जब तक वो वेटर उसके दरवाजे बंद ना करे। तो फिर 1:30 बजे जनाब वहाँ से कहता था कि अब आप तशरीफ़ ले जाइए, तो ये लोग घर नहीं जाते थे, ये फिर सड़कों पे घूमते रहते थे लाहौर की और गलियों में। और एक तांगे वाला था जिससे इनकी बहुत दोस्ती हो गई थी, और वो तांगे वाले के बाजौक आदमी था वो, तो अल्लाह करे और तांगे वाले ऐसे हों। तो वो इनसे शेर सुनता था, और फिर कभी कभी वो कहता था कि नहीं जी आपसे पैसे नहीं लूँगा। वाह। और उस ज़माने में उनका जहाँ घर था वो कृष्ण नगर कहलाता था। तो ये इनकी बहुत ज़्यादा कुर्बत भी रही और दोस्ती भी रही। तो हम आगे बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, उनके एक दो शेर हम पढ़ेंगे बीच में। फिर पहले अनु से दरख्वास्त करूँगा कि कर्टन रेजर के तौर पे वो अपनी गज़ल पेश करें। जी अनु। बहुत बहुत शुक्रिया। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਸਿਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਆਲ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ, ਕਾਸਿਰ ਜ਼ਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, वसीर काज़मी सर and everybody around over there। और सब तो पहले ब्यूटीफुल गजल नीयत ते शौक भर ना जाए कहीं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। नीयत शौक भर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं। शुक्रिया। ना मिलना उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, ये भी इसी गज़ल का शेर है। कुछ गज़लें पढ़ेंगे नासिर काज़मी साहब की और फिर उनके बेटे से अपने वालिद की गज़ल, और वो अपनी गज़ल सुनाना चाहें तो हम शुरू करते हैं कि सफ़र मंजिल शब याद नहीं। वाह। सफ़र मंजिल शब याद नहीं, लोग रुखसत हुए कब याद नहीं। क्या बात। वाह। में हर वक्त चुभन रहती थी मुझे किसकी तलब याद नहीं। क्या बात। याद नहीं। और वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजब याद नहीं। क्या बात। वाह वाह। Very nice. माजी के दयार
ये मेरे ख्याल है अम्बाला याद आ रहा है। जी भूलते जाते हैं माजी के दयार, याद आए भी तो सब याद नहीं, याद आए भी तो सब याद नहीं। और रिश्ते जहाँ था कभी जिसका ख्याल, कि जिसके ख्याल से मेरी जान की डोरी बंधी हुई थी, रिश्ते जहाँ था कभी जिसका ख्याल, उसकी सूरत भी तो अब याद नहीं। वाह और ये जरा सुनिए शेर कि जी। ये हकीकत है कि अहबाब को हम, यानी दोस्तों को, वाह वाह ये हकीकत है कि अहबाब को हम याद ही कब थे जो अब याद नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह, बात है, ये बहुत हकीकत है कि अहबाब को हम याद ही कब थे जो अब याद। याद नहीं। और ये सुनिए इन्होंने क्या इंटरनलाइज किया है इस अगले शेर में, हमें दुनिया को याद है सैर चरागा नासिर, हाँ हाँ याद है सैर चरागा नासिर, दिल के बुझने का सबब याद नहीं। क्या बात वेरी ब्यूटीफुल बात। इंटरनलाइज। फिर वो कहते हैं, देखिए अशोक आजमी साहब की बहुत सी खुसूसियात थी और ये अपने ज़माने के सबसे बड़े शायर थे। छोटी बात नहीं कह रहा हूँ, जी। एक खुसूसियत इनमें ये थी, मैं तो इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ ना शायर हूँ जैसे कि आप लोग हैं, कि ये बड़ी बात और गहरी बात आसान लफ्ज़ों में कहते थे। ये इनसे पहले एक और बहुत बड़े शायर के ये वस्फ था, मीर तकी मीर का। जी। मीर को भी जब बात कहनी होती थी तो बड़े आसान लफ्ज़ों में छोटी सी बात कहते थे और आदमी जो है वो वहीं ढेर हो जाता था। मीर का एक शेर है कि वजह बेगानगी नहीं मालूम, ये साजा पंजाब के लिए भी शायद ठीक रहेगा ये। जी। तो आप उधर हैं और हम इधर हैं और कहीं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो वो यही कह रहे थे कि मीर का शेर है कि वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहाँ के हो वहाँ के हम भी। वाले के हैं, बाजिल काजमी साहब के वालिद अंबाले के थे। ये शेर बिल्कुल फिट है और ये मीर तकी मीर का शेर है। वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहाँ के वहाँ के हम भी। तो मालूम है, उनसे पूछिए कि क्यों। अच्छा, एक गजल और है आगे। दिल धड़कने का सबब याद आया। हाँ हाँ दिल धड़कने का सबब सबब याद आया, तेरी याद थी, अब याद। Please repeat it. दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद अब आया। याद आया। Oh yeah, yes. आज मुश्किल का संभलना है दोस्त, आज मुश्किल था संभलना है दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। क्या बात है, क्या बात है, दोस्त बहुत खूब। तू याद नहीं आता तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता, तेरी याद जो है वो भी मेरे लिए तरियाक है। गुजारा था बड़ी मुश्किल से, शब्द याद आया। क्या बात। Connectivity is not so good. जाफरी साहब थोड़ा सा अपने आप को करीब करें। Yeah, we are missing out. ओके सॉरी। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। क्या बात। और तेरा भूला हुआ पैमाने वफा, क्या बात। वादा किया था, तेरा भूला हुआ पैमाने वफा, मर रहेंगे अगर अब याद आया। क्या बात। अब याद आ गया तो हम जान ले देंगे। और हाले दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। तब याद। क्या क्या हमने सब कुछ भूल चुके थे। हाले दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। बैठकर साये गुल में नासिर, बैठकर साये गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। Wow.
मलका तरुण नूरजहां ने ये बड़ी रचाव के साथ गाई है ये गजल। जी। अब में जो किसानों का हो रहा है और जगह जो हो रहा है उस पर एक आदमी साहब के मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, ये खलकत चैन से क्यों सो रही है। वाह वाह। फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, ये खलकत चैन से क्यों सो रही है। हमारे घर की दीवारों पे नासिर Yes. दास्तान खोले सो रही है। Right. वाह वाह। हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। हर उसके लिए है जो मजलूम है पूरी दुनिया में। अब मैं बासिर काजी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि और मैं जाफी साहब आपसे ये बताऊं कि बासिर साहब जब आएंगे तो ऑडियंस के लिए मैं बताऊं, हमारे जो हाजरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बासिर साहब के 4 दीवान छप चुके हैं इनकी अपने कलाम के। तो देखिए कैसे जीन्स आगे ट्रेवल कर रहे हैं और हम कितने खुशकिस्मत हैं। लेकिन बासिर साहब आज अपने वालिद साहब का कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बासिर साहब जी बिस्मिल्लाह। जी। जाफी साहब ने अभी जो अशार सुनाए नासिर के, मुझे एक गजल याद आई, उसके कुछ अशार में। जी जी। रह नवर्दे बयाबान गम सब्र कर, वाह वाह रह नवर्दे बयाबान गम सब्र कर, सब्र कर, कारवां फिर मिलेंगे बहम, सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर। क्या बात। बेनिशा है सफर, रात सारी पड़ी है मगर, बेनिशा है सफर, रात सारी पड़ी है मगर, आ रही है सदा दम बदम, सब्र कर, सब्र कर। वाह। तेरी फरियाद गूंजेगी धरती से आकाश तक, तेरी फरियाद गूंजेगी धरती से आकाश तक, कोई दिन और सह ले सितम, सब्र कर। सब्र कर। Very nice. बहुत खूब। और दफ बजाएंगे बरगो शजर, वाह। सफ बसफ हर तरफ, हम्म। दफ बजाएंगे बरगो शजर, सफ बसफ हर तरफ, खुश्क मिट्टी से फूटेगा नम, सब्र सब्र कर, कर, सब्र कर। सब्र। क्या Wow. वाह। लहलहाएंगी फिर खेतियां, कारवां कारवां, लहलहाएंगी फिर खेतियां, कारवां कारवां, खुल के बरसेगा अब्रे करम, वाह सब्र कर। सब्र कर। सब्र कर। क्यों पटकता है सर संग से, जी जला ढंग से, क्यों पटकता है सर संग से, जी जला ढंग से, दिल ही बन जाएगा खुद सनम, सब्र सब्र कर, कर, सब्र सब्र कर। कर। क्या ये बात। जी ढंग बातें वाला बड़ा अच्छा था। पहले खिल जाए दिल का कमल, फिर लिखेंगे गजल, पहले खिल जाए दिल का कमल, फिर लिखेंगे गजल, कोई दम है सरीरे कलम, सब्र कर। सब्र कर। क्या बात। Beautiful. दर्द के तार हिलने तो दे, दर्द के तार मिलने तो दे, होंठ हिलने तो दे, सारी बातें करेंगे रकम, सब्र कर, सब्र कर। हमकता है देख नासिर, जमाने में कोई किसी का नहीं, वाह देख नासिर जमाने में कोई किसी का नहीं, भूल जा उसके कौलो कसम, सब्र कर। सब्र कर। Very हाँ। nice. वाह वाह। बहुत बहुत बासिर भाई आप कुछ अपने वालिद के मुतालिक कहना चाहेंगे, सम एनेक्डोट और समथिंग? जी बहुत कुछ, जाहिर है कि ये तो बात मौजूद ऐसा है, तो मुझे तो लगता है कि उनके साथ बहुत कम वक्त गुजरा। मेरी उम्र 18 साढ़े 18 बरस थी जब वो फौत हो गए, लेकिन लगता है कि ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजरा, क्योंकि वो क्वालिटी टाइम देते थे। थोड़ा वक्त मिलता था उनसे, लेकिन वो भरपूर उसमें तवज्जो
और जो हमारी ज़रूरत की बात थी होती थी उस वक्त मेरे और मेरे भाई की, वो हमें आमतौर पे छुट्टी के दिन उनसे मुलाकात होती थी। जब वो रात को आते तो हम सो रहे होते, जब सुबह हम स्कूल जा रहे होते तो वो सो रहे होते। ये दिन, लेकिन लगता ये है कि बहुत वक्त उन्होंने दिया हमें, और हम अपनी अपनी इतनी जो नशो-नुमा है उसके जिस दौर में, जिस स्टेज में होते थे, उसके हिसाब से वो उतनी तवज्जो फिर बढ़ाते भी चले गए। फिर हमें शतरंज सिखाई, हमारे साथ वो हम और बहुत सी अपने बचपन की बातें करते थे, अपने अपने बड़ों की, बुजुर्गों की बातें करते थे, और फिर जो चीज़ हम पढ़ रहे होते थे उससे रेलेवेंट बातें। तो एक तो ये बात, दूसरे ये कि उनके मतलब मेरी वालदा का भी बहुत उसमें उनके दोस्तों ने, इंतज़ार हुसैन ने खास तौर पे और दोस्तों ने, लोगों ने लिखा भी है, मेरी वालदा की भी बहुत कंट्रीब्यूशन थी उनको फुर्सत फराहम करने में और उनको बात बातों से बेनियाज करने में, क्योंकि घर का इंतजाम और दूसरी बातें। फिर मेरे चाचा जो थे वो स्कूल छोड़ना, होमवर्क देखना हमारा, वो उनके जिम्मे था। मेरी वालदा की पढ़ाई जो थी वो नामुकम्मल रह गई थी आज़ादी के वक्त, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तालबा थी इंटरमीडिएट की। तो जब वो पाकिस्तान आ गई तो फिर वो जाहिर है, तो लेकिन मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करें और पढ़ें, अपनी शख्सियत बनाएं। तो उनके खतूत से कुछ इक़्तिबासात मैंने किसी जगह, एक किताब मैंने पूरी लिखी थी, नासिर काज़मी शख्सियत और फन, अकेडमी ऑफ लेटर्स पाकिस्तान के लिए। कई मज़ामीन भी लिखे हैं, उनकी किताबों के दिबाचे लिखे हैं। उन्होंने जो शायरों के इंतखाब किए हैं, मीर नज़ीर अकबर आबादी, दाग, अली दफ़ी, तो उसको मैंने उनको एडिट किया और उनको लिखे हैं। तो उन खतूत में जब हम, हमारा जो ननिहाल था वो मंटगोमरी में था, 100 मील दूर। तो जब हम वहाँ जाते छुट्टियों में तो उस ज़माने में तो बहुत खत किताबत, तो लाइक वो कहा, उस उन खतूत से पता चलता है कि वो चाहते थे कि मेरी वालदा अपने जो टैलेंट्स हैं, तो कभी उन्हें अफ़साना लिखने का शौक़ था, कभी कुछ और लिखने पर, और तालीम अपनी। तो फिर मेरी वालदा ने फिर इंटरमीडिएट किया, फिर बीए किया, फिर बीएड किया, फिर वो स्कूल में पढ़ाने लगी, फिर उसकी हेडमिस्ट्रेस बनी, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बनी एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो ग्रेजुएशन उन्होंने मेरे वालिद की ज़िंदगी में किया, बाकी काम उन्होंने बाद में। तो ज़ाहिर है कि जो उन्होंने सोचा था मेरी वालदा के बारे में, वो उन्होंने फिर पूरा किया। और उसमें एक अच्छी बात ये भी हुई कि ज़ाहिर है कि वो बहुत यंग थी जब मेरे वालिद फौत हुए, तो उनको एक स्कूल और वहाँ बच्चियाँ और उनकी वालदाएँ, उनके साथ जो उनका दिन गुज़रता था, तो उनको, उनके लिए ज़िंदगी कुछ थोड़ी-सी काबिल कबूल और एक तरह से काबिल बर्दाश्त होगी, क्योंकि सदमा हम सब के लिए बहुत था उनके जाने का। He died when he was only 46। Oh, उनके दोस्त, उनके घर वाले, हम लोग बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें, ये एक दो बात और ये कि उनकी शायरी के जो जो नुमायाँ ख़ुसूसियात जो आमतौर पर जिनका ज़िक्र होता है, ज़ाहिर है दुःख है, उसमें कर्ब है, हिजरत है, बिछड़ना है, मोहब्बत है, फितरत के मनाज़िर हैं, मज़ाहिर हैं, वो सब अपनी जगह। दुःख दरअसल एक बड़ी ताकत है, दुःख तो बहुत सबसे बड़ी सच्चाई है ज़िंदगी की, तो उसको वो ताकत बनाते हैं। और वो हिज्र को, तो जैसे इकबाल ने भी कहा कि हिज्र हिज्र में लज़्ज़त तलब की बात उसने की है। तो उनकी शायरी को इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए। मैंने इसको मज़मून लिखा है जो शाया हुआ, कि उनकी पूरे कलाम में एक आइडियल मुआशरे का, मिसाली मुआशरे का एक तस्वुर मिलता है कि वहाँ लोग कैसे आपस में रहें या रहते हैं या रहते थे, और वो वहाँ इंसाफ हो, बड़े छोटे में तमीज़ हो। बज़ाहिर जिन्हें छोटे आम लोग कहा जाता है, वो आम नहीं होते। उनकी इज़्ज़त, उनका दर्जा उतना ही होता है जितना उन लोगों का जिन्हें बहुत ख़ास समझा जाता है, ख़ास दर्जा दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत, उनके कलाम के बहुत से इस तरह से बहुत बेअंदाज़ा अनगिनत अशआर ऐसे हैं कि जो मैंने इनका हवाला दिया। तो ज़ाहिर है कोई और मौका हो या जब भी अब कुछ और बात होगी तो कुछ और अर्ज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया। गेट बैक टू यू। अभी हम इतने आराम से आपको नहीं छोड़ेंगे। वो लाहौर की बात हो रही थी जी। इंतज़ार हुसैन साहब और नासिर काज़मी साहब, बेपनाह मोहब्बत थी इस शहर से, और ज़्यादातर लाहौरियों को उस शहर से मोहब्बत है।
उनका एक शेर है कि शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम आबाद, दायम यानी हमेशा की। वाह शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। वाह वाह लाई अम्बाले से, अम्बाले को भी नहीं भूले जैसे मैंने अर्ज किया था। लेकिन फिर ये भी हुआ कि क्योंकि अब रात 1:30-2 बजे घर जाएंगे, जैसे बासिर साहब ने भी कहा कि ये सो रहे होते थे जब वो आते थे और वो सो रहे होते थे जब ये स्कूल जाते थे। लेकिन उसको उन्होंने कैसे इंटरनाइज किया वो देखिएगा। कहते हैं कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, वाह शहर वाह क्यों साएं वाह करता है। दिल तो मेरा उदास है नासिर, क्या बात। शहर क्यों साएं साएं करता है। अच्छा, एक मैं आपको वाह इंटरेस्टिंग, ये साझा पंजाब की ऑफिस में हो रहा है। आपकी वालदा गुजरांवाले की थी। गुजरांवाले में 2 महल्ले हैं, एक है गुरु नानकपुरा जी और एक है गोविंदगढ़। जी जी अच्छा, उन दोनों मोहल्लों में ज़्यादातर अम्बाले के काज़मी हजरात हैं वहाँ पे, जिनसे शायद अजीज़दारी भी होगी आपकी। जी तो वो उनकी पूरी, जैसे मैंने अर्ज़ किया था ना वो खाला जी फिरोजपुरनी वाली बात, जी जी तो इस पूरी बस्ती में इस पूरे कबीले को अम्बाले वाले कहा जाता है। क्या बात है। वो अभी भी अम्बाले वाले कहलाते हैं जी और उनका काफ़ी अज़ादारी वगैरह है, बहुत कुछ है। तो ये छूटती नहीं है। माफी चाहूंगी साहिब, आप 2 कस्बों की बात कर रहे थे, गुरु नानकपुरा और गोविंद दूसरा। गोविंदपुरा। अच्छा, मैं वो शायद कनेक्शन की वजह से भूल गई, सॉरी टू इंटरप्ट, कंटिन्यू प्लीज। Don't be sorry, say anything. अब हम जरा एक इन्होंने गज़ल पढ़ी वक्त की कमी की वजह से अनु ने, तो वो नामुकम्मल रह गई थी, तो मैंने सोचा कि उसके बाकी जो शेर हैं वो फिर एहतजाज करेंगे। जी सिर्फ एक ही एहतजाज होना चाहिए जो हो रहा है। एहतजाज मीन्स प्रोटेस्ट। जी जी अभी हम कर रहे हैं पूरे जी बिल्कुल। बीच में कर रहे हैं। वो है कि नीयत शौक भर न जाए, तू भी दिल से दिल उतर। से उतरना चाहेगा। ये उर्दू फारसी शायरी में कहीं नहीं कहा तू मेरे दिल से उतर जाएगा, अपने महबूब से नहीं कहा, और कम से कम मुंह पे तो नहीं कहा उसके। उतर ना जाए, और आज देखा है तुझको देर के बाद, ये आज खूबसूरत है। उतर ना जाए कहीं, और ना मिलाकर उदास लोगों से। हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, ये अब आगे मुकम्मल हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। काशिम साहब ये बड़ी खूबसूरत, इस बात में आपको मैं माफी चाहता हूँ, माजरत खाऊं कि मैंने बीच में। देखिए, हम सबके दिलों में नासिर बसते हैं। बिल्कुल। ये अक्सर औकात हम लोग ये गजल को चलते हुए, खाते हुए, नहाते हुए और अपनी कोई भी रोजमर्रा के जो काम करते हैं उसको काम करते करते ये गजल अमूमन हम ये गाते हैं, सुनी होती है, गाते हैं। इसकी हकीकत ये है कि नासिर साहब हम सबके दिलों में बसते हैं। बेशक जी बेशक। ना मिलाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं। और अगला शेर सुनिए जरा। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, वाह। फिर उम्र भर ना जाए कहीं। हाँ ब्यूटीफुल। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, उम्र भर न जाए। क्या उसको यहाँ ले आए आप। आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर ना जाए कहीं, वाह और जी जलाता हूँ और Say it again, please. और सोचता हूँ, रायगा ये हुनर ना जाए कहीं। ओह, वाह वाह, क्या बात है। आओ कुछ देर रो ही लेना से, दिस इज नाइस। उतर ना जाए कहीं। करिए करना चाहिए। वाह अब समझ लीजिए, जी जरा निगाह की वो लगाइए। जी 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 बिस्मिल्लाह। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया। वाह वाह। Love it. Very nice. आवाज आ रही है? जी जी आ रही आ रही। गए दिनों का सुराग लेकर
Connectivity is poor. The sound is. Yeah, there is no sound. You can see Ahmed Faraz and Faz. Ikhar Arif. Okay. शोहरत बुखारी Yes. Mm-hmm. It's not audible. Yeah, there's no sound. जब देखा कर बस एक मीठी सी धुन सुना कर सितारा ये शाम बन के आया बरंगे ख्वाबे सहर गया नाब वो यादों का चढ़ता दरिया न फुर्सतों की Sound gone. Yeah. No sound. फिर मेरा ख्याल है साउंड तो नहीं आ रही है, तो विल हैव टू कंटिन्यू। ये जी साउंड बिल्कुल नहीं है गीपा जी, नहीं आ रही नो तो साउंड। लेट्स मूव ऑन देन। या नासिर क्या कहता है, कुछ न सुनो तो बेहतर है। वाह, सरदार जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ न सुनो दीवाना है, दीवाने के मुंह न लगो तो बेहतर है। तो बेहतर है। कल जो था वो आज नहीं, जो आज है कल मिट जाएगा। रूखी सूखी जो मिल जाए शुक्र करो तो बेहतर है। तो बेहतर है। कल ये ताबो तवा न रहेगी, ठंडा हो जाएगा लहू। नाम खुदा हो जवान अभी कुछ कर गुजरो तो बेहतर है। वाह, क्या जाने क्या रुत बदले हालात का कोई ठीक नहीं। ये 1947 में इनका ये शेर बिल्कुल सही साबित हो गया। क्या जाने क्या रुत बदले हालात का कोई ठीक नहीं। अब के सफर में तुम भी हमारे साथ चलो तो बेहतर है। बेहतर है। आज के हालात पे मकबूल है। वाह, क्या जाने क्या रुत बदले हालात का कोई ठीक नहीं। अब के सफर में तुम भी हमारे साथ चलो तो बेहतर है। वाह, और कपड़े बदल कर बाल बनाकर कहाँ चले हो, किसके लिए। किसके लिए? क्या बात, वेरी नाइस वन। बट क्या नजारा है। बाल बनाकर कहाँ चले हो, किसके लिए। रात बहुत काली है नासिर, घर में घर रहो। में रखो तो बेहतर। वाह, रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है। बेहतर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरुदेश जी से, उन्होंने पिछले दिनों एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा नासिर काज़मी साहब पे, जो मैंने फेसबुक पे लगाया इस सरनामे के साथ, अम्बाला मिसेस नासिर काज़मी। जी मज़ेदार है, वो आप पढ़िएगा फेसबुक पे। मैं गुरुदेश जी से कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने शायद उनकी एक गज़ल जो है उसका तर्जुमा भी किया है, तो वो तर्जुमा सुना दें और अगर कुछ कहना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच जाफरी साहब। तर्जुमा एक नहीं, आपके साथ बासिर काज़मी बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि इनके कहने पे मैंने 100 गजलों का तर्जुमा किया है।
वाह और गजलें ट्रांसलेट की हैं और ऑलमोस्ट उसका जो बुक ड्राफ्ट है वो तैयार है। जी अच्छे, चलो खैर वो तो अलग बात है। मैं एक छोटी सी बात जो कहना चाहूंगा नासिर के बारे में वो ये है कि उनको रात बहुत पसंद थी। रात को वो, उनके बारे में बहुत कहानियां बनी हुई हैं कि वो रात को बहुत लंबी लंबी सैर करते थे लाहौर की गलियों में। उसके ऊपर, रात के ऊपर और इन गलियों के बीच में और चांद को लेके उन्होंने कुछ बहुत ही खूबसूरत शेर कहे हैं। मैं कुछ वो आपको एक दो चार शेर सुनाऊंगा, उसके बाद आपको फिर एक गजल की ट्रांसलेशन सुनाऊंगा। जी। शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। क्या बात। वेरी ब्यूटीफुल। वाह वाह। किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर, चलो अब घर चलें, दिन जा रहा है। वाह वाह। और जो मुझे लगता है कि मेरे बहुत खूबसूरत मुझे लगता है शेर वो था, क्या जमाना था कि हम रोज मिला करते थे, रात भर चांद के हमराह फिरा करते थे। क्या बात। उनके लिए जो नाइट थी वो बहुत क्रिएटिविटी का समय था, बड़ा क्रिएटिविटी को मानते थे वो, इसलिए दो चार उन्होंने शेर बहुत खूबसूरत लिखे हैं जो कि रात और क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। एक उनमें है, ध्यान की सीढ़ियों पे पिछले पहर, ध्यान की सीढ़ियों पे पिछले पहर कोई चुपके से पांव धरता है। शाम से सोच रहा हूं नासिर, चांद किस शहर में निकला होगा। ओहो। और जो लास्ट शेर आपको उसको सुनाना चाहूंगा वो है, जो मुझे लगता है कि उनकी एक्चुअल क्रिएटिविटी का वो एक एक्सप्रेशन है। शब की तन्हाइयों में पिछले पहर, शब की तन्हाइयों में पिछले पहर चांद करता है गुफ्तगू हमसे। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। इसको दोबारा पढ़िए। या तन्हाइयों में पिछले पहर चांद करता है गुफ्तगू हमसे। ये बड़ी खूबसूरत गजल है, फरीदा खान ने गाई हुई है वैसे तो पर ये है कि मुझे लगता है कि ये बहुत रोमांटिक और बहुत खूबसूरत शेर है। सरदार जी आप तर्जुमा सुनाइए अपनी गजल, जो उनकी गजल का तर्जुमा किया है आपने। हाँ जरा, कौन सी गजल का जो आप कह रहे हैं, इस गजल का कि आपको पसंद है वो? चलिए मैं आपको जो सुनाता हूँ वो है इकबाल बानो की गाई हुई बड़ी खूबसूरत गजल है, मैं उसका तर्जुमा और वो गजल आपके सामने रखूंगा। ये है, तेरे ख्याल से दिल लौ उठी है तन्हाई। Many of us would have heard this. Iqbal Bano has done such a wonderful job on this. She has rendered it so beautifully. गजल पहले उर्दू में, तेरे ख्याल से लौ दे उठी है तन्हाई, शबे फिराक है या तेरी जलवा आराई, तो किस ख्याल में है मंजिलों के शादाई, उन्हें भी देख जिन्हें रास्ते में नींद आई। बड़े चुपके से नासिर जो ये सारा का सारा इतना हॉलोकास्ट देखा उसने, इतना पार्टीशन के समय जो क्रुएलिटी देखी है, इतना कुछ देखा कि लोग मर गए हैं, लोग पीछे रह गए हैं, घर बदल गए हैं, बड़े चुपके से वो एक शेर के अंदर ऐसी बातें कह जाते हैं। इसी शेर को जरा दोबारा सुनिए। तो किस ख्याल में है मंजिलों के शादाई, उन्हें भी देख जिन्हें रास्ते में नींद आए। पुकार ए घर से कारवाने सुबह तरफ, पुकार ए जर से कारवाने सुबह तरफ, भटक रहे हैं अंधेरे में तेरे शादाई। बहुत बहुत वाह। ठहर गए हैं सरे राह खाक उड़ाने को, मुसाफिरों को न छेड़ ए हवाए सहराई। रहे हयात में कुछ मरहले तो देख लिए, रहे हयात में कुछ मरहले तो देख लिए, ये और बात तेरी आरज़ू न रास आई। ये सानिहा भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, कि उसने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। वेरी इमोशनल, बहुत खूबसूरत शेर है।
बहुत ये सांझा भी मोहब्बत में बारहा गुजरा बार कि उसने हाल ही पूछा तो आंख भर आई। दिले फसुर्दा में फिर धड़कनों का शोर उठा। ये बैठे बैठे मुझे किन दिनों की याद आई। कैसे पिछली बातों नॉस्टैल्जिया और जो सारा वो सेंस ऑफ लॉस है एकदम ले आते हैं वो। मैं सोते सोते कई बार चौंक चौक पड़ा। तमाम रात तेरे पहलुओं से आंच आई। वाह। इसका तर्जुमा सुनाएंगे अब हाँ भी ट्रांसलेशन। था। चलिए जरा इसकी ट्रांसलेशन सुना देते हैं जी जरा। A flashback of you has lighted my solitary existence. Is it a lonely night or a celebration of your presence? What is it that drives you mad about journey's end? Think of those who went into last sleep on the bend. Ring the caravan bell to herald dawn of a new day. In the darkness, your followers have gone astray. They stopped on the way just to idle in the dust. Oh, desert winds, don't grudge the travelers in rest. On the highway of life, I have managed a few crises. Though your love is something I could never harness. Wow. A disaster like this has happened in love too often. When eyes well up at a casual greeting of someone. My sick heart found a rumble of sudden heartbeat. Are the memories of some old days going to repeat? Many a time I have shook out of sleep with a fright. A warmth arose from your side the whole night. Okay, अगले शेयर मैंने पढ़े नहीं, चलो आपको वैसे अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ. In the meantime, source that ghazal sung by Zahra Nigah, recited by her, तो वो उसकी शायद आवाज अब बेहतर आ जाए. Shall I continue? जी जी. Let me just finish. Are you getting the right sound? Yeah. गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो है कर गया वो बस एक मोती सी छप दिखा कर बस एक मीठी सी धुन सुना कर सितारा ये शाम बन के आया बरंगे ख्वाबे सहर गया वो नाब वो यादों का चढ़ता दरिया वाह वाह. क्या ना फुर्सतों की उदास बरखा यूं ही जरा सी कसक है दिल में जो जख्म गहरा था भर गया वो वो मैं कदे को जगाने वाह 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 वाह. पूरा की
गया वो। बहुत खूब। वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वाह वो। वाह। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए, प्लीज होल्ड ऑन। जी, मैं समझ सकता हूँ ये YouTube ऐसे ही कभी-कभी करता है। और जी, परवेज मेहंदी ने भी ये बड़ी खूबसूरत गाई है और बराए इंडिया में मेहरबानी होल्ड कीजिए, प्लीज होल्ड ऑन। आशा भोसले ने गाई है। जाने किधर अब हम आखिर में की तरफ बढ़ रहे हैं अपने प्रोग्राम की। मुश्किल ये होती है कि नासिर काज़मी साहब के साथ इंसाफ नहीं हो सकता 60 मिनट में, उनके साथ तो इंसाफ हो ही नहीं सकता। अभी अब मैं एक दरख्वास्त करूंगा बासिर साहब से कि आप अपनी एक गज़ल सुनाइए कोई। ये सबसे मुश्किल मरहला है। आप जानते हैं कि मुशायरों में या अदबी महफिलों में सीनियर शोरा या खासतौर पर असातिज़ा के कलाम के बाद सुनाना तो एक लेकिन ये है ना, तो आपको एक सपोर्ट दे देता हूँ तो फिर आपके लिए आसानी होगी। जी प्लीज। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। तेरे जैसा हूँ। आप इतराज का एक जवाब दे दूं। जी, आपके जी। वक्त का शेर है कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, जी, ना होंगे कोई हमसा होगा। हमसा होगा। आप जैसा उनके साथ उनके करीब और कौन हो सकता था। अरे कहा आप उस कारवान को चलने दीजिए, जी। सुना दीजिए। जी बहरहाल जो भी काविश है, जाहिर लिखना तो मैंने उनकी ज़िंदगी में ही शुरू कर दिया था। उन्हें कुछ अपना इब्तदाई कलाम दिखाया भी, इस्लाह भी देते थे। कभी कभी कोई शेर पसंद आता था तो बहुत हौसला अफजाई भी करते थे। तो बहरहाल बड़े अदब के साथ एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। इसमें एक दो अशार कुछ आज की महफिल के से मुताबिक रखते हैं। बैठे रहेंगे वो तो हमेशा दबा के बाद। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए, प्लीज होल्ड ऑन। जी। बैठे रहेंगे वो तो हमेशा दबा के बाद, वाह, हम ही करेंगे उनसे किसी रोज जा के बाद। क्या बात है। बैठे रहेंगे वो तो हमेशा दबा के बाद, हम ही करेंगे उनसे किसी रोज जा के बाद। कुछ भी निकाल सकते हैं मतलब वो बात का, कुछ भी निकाल सकते हैं मतलब वो बात का। करता हूँ इसलिए मैं बहुत बच बचा के बात। वाह वाह। कुछ भी निकाल सकते हैं मतलब वो बात का। करता हूँ इसलिए मैं बहुत बच बचा के बात। पेचीदा हो गए हैं हमारे ताल्लुकात, पेचीदा हो गए हैं हमारे ताल्लुकात। करनी पड़ी है मुझको घुमा के फिरा के बाद। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। पेचीदा हो गए हैं हमारे ताल्लुकात, करनी पड़ी है मुझको घुमा के फिरा के बाद। एक हम के लेके बैठ गए एक लफ्ज को, हम के लेके बैठ गए एक लफ्ज को। एक वो कि चल दिए जो हंसी में उड़ा के बाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। एक हम के लेके बैठ गए एक लफ्ज को, एक वो कि चल दिए जो हंसी में उड़ा के बाद।
और कहता हूँ दिल की बात घटाकर रकीब से, कहता हूँ दिल की बात, कहता हूँ दिल की बात घटाकर रकीब से, करता है वो जो आगे बढ़ा के चढ़ा के बात। क्या बात अच्छा है, अच्छा है, वाह। शुक्रिया। कहता हूँ दिल की बात घटाकर रकीब से, करता है वो जो आगे बढ़ा के चढ़ा के बात, और वो जो बनी हुई है रुकावट सी दरमियान, वो जो बनी हुई है रुकावट सी दरमियान, मिलना हो अब हमें तो मिले वो हटा के बाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो जो बनी हुई है रुकावट सी दरमियान, मिलना हो अब हमें तो मिले वो हटा के बाद। और दो शेर और हैं कि मतलूब वाइजों को है शायद हमारे अश्क, मतलब शायरों मतलूब वाइजों को है शायद हमारे अश्क, हंसने की भी वो करते हैं अक्सर रुला के बाद। रुला के बाद, क्या बात है। मतलूब वाइजों को है शायद हमारे अश्क, हंसने की भी वो करते हैं अक्सर रुला के बाद। और मक्ता है बासिर बयान सादा को पाया है बेअसर, खूब अच्छा है। बासिर बयान सादा को पाया है बेअसर, कीजिए जरा संवार के कदरे बना के बाद। अच्छी बात बनाई। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत बासिर अच्छा। बयान सादा को पाया है बेअसर, कीजिए जरा संवार के कदरे बना के बाद। बहुत शुक्रिया। क्या खूब अक्कासी की है घर के मंजर की, ये मेरे घर में तो रोज होता है। बहुत शुक्रिया। ये बहुत से घरों में बहुत होता है ये। अब हम आते हैं कि क्योंकि हमारे पास 5-6 मिनट रह गए हैं अब जी, तो कहते हैं कि दुनिया भी ऐसा भी कोई सपना जागे, क्योंकि जागते रहते थे, लेट सोते थे हमेशा। ऐसा भी कोई सपना जागे, साथ मेरे एक दुनिया जागे, वो जागे जिस नींद ना आए, या कोई मेरे जैसा जागे। हवा चली तो जंगल जागे, नाव चली तो नदियां जागे, रातों में ये रात अमर है, रातों में ये रात अमर है, कल जागे तो फिर क्या जागे। क्या बात दाता की नगरी में नासिर, मैं जागूं या दाता जागे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लाहौर के बारे में सबसे खूबसूरत शेर है ये। मैं जागूं या दाता जागे। अच्छा, इनका एक पूरा दीवान है, पहली बारिश जी, वो एक मुसलसल गजल है, एक रदीफ एक काफिया। वो पूरी तो नहीं पढ़ी जा सकती यकीनन, तो उसके कुछ कुछ शेर आपके साथ शेयर करते हैं। ये बड़ी ही रोमानी चीज है, रोमांटिक है और बड़ी खूबसूरत है जी। तू जब मेरे घर आया था, मैं एक सपना देख रहा था, क्या बात है। एक फूलों की खुशबू से सारा आंगन महक रहा था। क्या बात है। चांद की धीमी धीमी जौ में, जौ कहते हैं उसकी रोशनी, चांद की धीमी धीमी जौ में सांवला मुखड़ा लौ देता था। तेरी नींद भी उड़ी उड़ी थी, मैं भी कुछ कुछ जाग रहा था, तेरे हाथ भी सुलग रहे थे, तेरा माथा भी जलता था। रात गए सोया था लेकिन तुझसे पहले जाग उठा था। तो वो आगे चल रही है कि मैं जब तेरे घर पहुंचा था, तू कहीं बाहर गया हुआ था, तेरे घर के दरवाजे पर सूरज नंगे पांव खड़ा था, और तेरे आंगन के पिछवाड़े बहुत खूबसूरत दरख्तों का रंग, तेरी आहट सुनते ही मैं कच्ची नींद से चौंक उठा था, और कितनी प्यार भरी नरमी से तूने दरवाजा, और मैं और तू जब घर से निकले मौसम कितना बदल गया था, मौसम कितना, और दूर के पेड़ का जलता साया हम दोनों को देख रहा था। क्या वाह। अपनी बेचैनी भी अजब थी, तेरा सफर भी नया नया था, तेरी पलकें बोझल सी थी,
मैं भी थक कर चूर हुआ था। सुनी के तेरे होंठ भी खुश्क हुए थे, मैं तो खैर बहुत प्यासा था। खिड़की के धुंधले शीशे पर, आप इमेजिनेशन देखिए जरा, सबरी देखिए। खिड़की के धुंधले शीशे पर दो चेहरों का अक्स जमा था। मेरे शाने पर सर रखकर मैं सपनों में डूब गया था। फिर अगला दिन निकल रहा है कि दिन का फूल अभी जागा था, धूप का हाथ बड़ा आता था। सुर्ख पहाड़ों के जंगल में पत्थर का एक शहर बसा था। क्या बात। और ठंडी धूप की छतरी ताने पेड़ के नीचे पेड़ खड़ा था। धूप के लाल हरे होंठों ने तेरे बालों को चूमा था। अरे इसको क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, बहरहाल कोशिश करते हैं। और यूं गुजरी वो रात भी जैसे सपने में सपना देखा था। वाह, बहुत खूब। जाफरी साहब रुक जाएं, वरना ये रोमानियत इतनी बढ़ जाएगी कि मुश्किल होगा आज की रात फिर काटनी। ये करना पड़ेगा, को भी 5 मिनट दे दिया कीजिए। जी जी। पत्थर का वो शहर भी क्या था, वाह, के नीचे शहर बसा था। पेड़ फूल भी पत्थर, पत्ता पत्ता पत्थर का था। चांद भी पत्थर, झील भी पत्थर, पानी भी पत्थर लगता था। और फिर कह रहे हैं कि पिछले पहर का सन्नाटा था। यानी बाकायदा एक दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तारा तारा जाग रहा था। और ये देखिए कि पत्थर की दीवार से लगकर आईना तुझे देख रहा था। बालों में थी रात की रानी, माथे पर दिन का राजा था। और गए दिनों की खुशबू पाकर मैं दोबारा जी उठा था। बहुत खूब। गए दिनों की खुशबू पाकर मैं दोबारा जी उठा। आपकी गुड़िया बनकर तेरा अक्स मुझे तकता था। जंगल दरिया खेत के टुकड़े, याद नहीं अब आगे क्या था। और अब एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है कि मुझको और कहीं जाना था, बस यूं ही रास्ता भूल। क्या बात, क्या बात। मुझको दूर कहीं जाना था, बस यूं ही रास्ता भूल गया था। और देख के तेरे देश की रचना मैंने सफर मौकूफ किया था। तेरे देश के रचाव देख के मैंने अपना सफर ही तर्क कर दिया। बिल्कुल। रात की तूफानी बारिश में तू मुझसे मिलने, माथे पर फूलों के मोती, आंख में काजल हंसता था। तू जब दोबारा आया था, मैं तेरा रास्ता देख रहा था। फिर वही रात, वही सपना था। तुझको लंबी तान के सोते मैं पहरों तकता रहता था। और तेरी सदा सुनते ही मैं घबरा कर जाग उठा था। और फिर अब ये कुछ जुदाई आ रही है आगे कि एक वो दिन जब बैठे बैठे तुझको ने घेर लिया था। सुबह की चाय से पहले उस दिन तूने रख्ते सफर बांधा था। और आंख खुद तुझे न पाकर मैं कितना बेचैन हुआ था। अब वो घर है ना वो शाम का तारा, अब न वो रात न वो सपना था। पिछली रात की तेज हवा में कोरा कागज बोल रहा था। कितना सुना था, दीवारों से डर लगता था। पूरी नहीं वो शाम जुदाई, मैं उसी रोज बहुत रोया था। मैं तुझको जाने की जल्दी थी और मैं तुझको रोक रहा था। धूप पर बादल छाया था, देर के बाद तुझे देखा था। और हम चलते जाते हैं आगे। चांद अभी थक कर सोया था, तारों का जंगल जलता था। प्यासी खूंजों के जंगल में मैं पानी पीने उतरा था। नए देश का रंग नया था, धरती से आकाश मिला था। और तेरे ध्यान की कश्ती लेकर मैंने दरिया पार किया था।
और अब ये अब आखिरी में है क्योंकि अब ये बहुत लंबी है। जरा वो इसमें तन्हाई वाले शेर भी सुना दीजिए जरा, पहली बारिश के जो हैं। तन्हाई का दुख गहरा था, वो मैं निकालता हूँ। तन्हाई का दुख गहरा था, मैं दरिया दरिया रोता था। वाह 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 वाह, बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं छोटी रात सफर लंबा था, मैं एक बस्ती में उतरा था, देख के जोबन की फुलवारी चांद गगन पर शर्माता था, माथे पर सोने का सोने चिंगारी की तरह उड़ता था, बाली राधा बाला मोहन ऐसा नाच कहाँ देखा था, कहाँ देखा था। बस खुशबू लेकर मैं उस बस्ती से निकला था, कैसे कहूँ रूदाद सफर की, कैसे कहूँ रूदाद सफर की, आगे मोड़ जुदाई का था, मैं उस शहर में क्यों आया था, मेरा कौन यहाँ रहता था। कूके टीलो कुछ तो बोलो, कौन इस नगरी का राजा था, किस देवी की है ये मूरत, कौन यहाँ पूजा करता, किस गोरी के हैं ये कंगन, ये कंठा किसने पहना था, यूं मेरी बच्ची की चिड़िया तूने मुझको याद किया था, मैं भी मुसाफिर तुझको भी जल्दी, गाड़ी का भी वक्त हुआ था। क्या बात। मुसाफिर तुझको भी जल्दी, गाड़ी का भी वक्त हुआ था, एक उजड़े से स्टेशन पर तूने मुझको छोड़ दिया। क्या बात। वाह, बहुत लंबी है इसलिए हम खत्म नहीं कर पाएंगे। जाफरी साहब, मैं आपको बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे डॉक्टर सरबजोत बहल, ये भी गुजरांवाला से हैं और ये यूनिवर्सिटी हमारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के डीन हैं। लेकिन जैसे जैसे आप गजल पढ़ रहे थे साथ साथ में वो गजल भी पढ़ रहे थे। मैं बासिर साहब से यही कहना चाहता था कि नासिर साहब अंबाला से पाकिस्तान नहीं गए, नासिर साहब अंबाला से हम सबके दिलों में आ गए। बहुत बहुत। फिलहाल तो हम अंबाला को यहाँ ले आए हैं रूम पे जी। तो ख्याल है कि अब इजाजत ली जाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अनु हमारे साथ हैं, तो अगर एक हमें वो जाते हुए इस मौसीकी के साथ हमें, और फिर हमारे साथ जसमीत नैयर हैं, इन्होंने प्रोग्राम को कंक्लूड करना है, कुछ अपने अनाउंसमेंट करनी इन्होंने, तो मैं गुजारिश करूंगा अनु जी से। श्योर अरविंदर सर। जी, बहुत ही खूबसूरत गजल मैडम नूर जहां ने नासिर साहब ने गाई सी, दिल धड़कने का सबा, वो थोड़ी सबने सामने पेश कर रही है। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, आज मुश्किल था संभलना आज मुश्किल था संभलना दोस्त, तुम मुसीबत में अजब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया।
बहुत खूब, वाह, जी जाफरी साहब, जाते हुए बस आपसे एक गुजारिश के आज तो बेसबब उदास है जी, आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता बात भी तो थी। कोई बात भी थी। क्या तो इसके मजाजी की एक खूबसूरत मिसाल नासिर साहब ने पेश की और वाकई आपने सही कहा कि उनको 60 मिनटों में लेके आना वो ज्यादती है। तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा भी इसके ऊपर बात करेंगे। तो जी जाफरी साहब, अगर इजाज़त हो तो मैं जसमीत जी को दावत दूँ? जी जसमीत जी। शुक्रिया, शुक्रिया अरविंदर साहिब। वो आगाज आज की महफिल का हुआ था सांझा पंजाब से, उसी के अंदाज से हुआ था, लेकिन ले आए हम नासिर काज़मी साहब को, और बसीर काज़मी साहब और कासिम जाफरी साहब, अनुरीत ने बहुत ही खूबसूरत आवाज में अपना कलाम पेश किया, अनुजोत और गुरुपदेश ने तर्जुमाए अंग्रेजी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिया, जो कि उनका खास मुश्किल शब्द बोला है। जी अंदाज है। और फिर मैं इस महफिल को अब अंजाम पे ले आऊं, तो जहन में आ रहा है कि ए दोस्त, हमने तर्क मोहब्बत के बावजूद तरके हमने तर्क मोहब्बत के यस बावजूद महसूस की है तेरी कमी कभी कभी। और मैं चाहूंगी कि ये मोहब्बत को ताल्लुकात का भी अंदाज दे सकते हैं, और समझिए ये कि हमें, चाहे आप कहीं भी हों पंजाब में, हमें आपकी कमी और ज़रूरत महसूस होती है कभी कभी। और जो नासिर साहब का ये शेर है, ये वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। या तो हमारी तो दुआ होगी कि हम जूम के माध्यम से ना हो के आपसे रूबरू हो माझा हाउस में, और सब आमने सामने बैठ के, जैसे आपको तस्वीर दिखाई है ना, वैसी महफिल चले कड़क चाय के साथ। ये हमारी दिली ख्वाहिश है। और बहुत शुक्रिया उन सब सामाइन का जो हमारे साथ जुड़े रहे, और शाम का बहुत खूबसूरत अंदाज रहा। माजा हाउस के इस मुकाम से सबका शुक्रिया। जी जसमीत जी, मैं आपसे एक बात आप भूल रही हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी मैं निभाता हूँ, क्योंकि ये हमारा दोस्तों ये हमारा सियाल फेस्टिवल चल रहा है 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। तो इसमें हमने 1 जनवरी से प्रोग्राम शुरू किए थे। इस हफ्ते हमारा जो हफ्ते के रोज, दैट इज 23rd ऑफ जनवरी, ये हमारे एक सेलिब्रेटेड बैंकर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, नैना लाल किदवई एंड अंकुर बाइसल। ये इंडियाज मेसी सैनिटेशन स्टोरी के ऊपर हमारा ये टॉपिक है और इसके ऊपर हम बात करेंगे। और 24 को, दैट इज संडे, साझा पंजाब का ये दूसरा सेशन इस महीने में होगा अंडर द बैनर ऑफ माजा हाउस, जिसमें जो हमारे फॉर्मर सफीर नवतेज सरना, जो हमारे एम्बेसडर थे यूएस में और डिप्लोमेट थे, नवतेज सरना और फ़कीर अजीजुद्दीन लाहौर से हमारे साथ जुड़ेंगे और ये हम बात करेंगे लाहौर पोर्ट की। तो ये 24 को इसकी डिटेल्स आपके जो हमारे पास ईमेल आईडीज हैं और जो हमारे साथ दोस्त अहबाब जुड़े हुए हैं, उनको सबको पहुंच जाती हैं। और जिनके साथ नहीं पहुंच पाई, मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, तो आप अगर उस लिंक पे रजिस्टर करेंगे तो ये फौरी तौर पर जितनी भी मालूमात है माजा हाउस की, वो सब आपके साथ आपके पास पहुंच जाएंगी। और इस प्रोग्राम को क्यूरेट करने में कासिम जाफरी साहब ने जितनी मेहनत की और कई दिनों से मुसलसल जो इन्होंने तवज्जो दी, वो आज बहुत बखूब ये एक शाम निकली। और जो नासिर साहब अम्बाला से लाहौर चले गए थे, नासिर साहब हमारे दिलों में हैं और आज हमने दोबारा उनकी पोइट्री, उनके कलाम के हवाले से उनको यहाँ पे माजा हाउस में महसूस किया। और बासिर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस नालायक नाचीज़ की उसको दरख्वास्त को कबूल किया और हमें
अपनी शान और शौकत से हमें नवाजा, अपनी शिरकत की। आपका भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेरी इज्जत अफजाई की आपने, आपका कासिम जाफरी साहब का और जी, बहुत और अनुजोत, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और गुरुदेव सिंह सर, और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे बात एक बार फिर कहनी चाहूँगा कि ये जो परचम माजा हाउस ने अमन, चैन, सुकून, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए प्रीति गिल ने जो परचम उठाया है माजा हाउस का और साझा पंजाब का, बहुत काबिल एहतराम। मैं तो समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है उनको बरकरार रहे। और प्रीति जी हमारे साथ हैं। और प्रीति जी सच में मैं हमेशा इनको बहुत से एडजेक्टिव्स कहता हूँ, ये ब्रिगेडियर जनरल इन चीफ है, ये पता नहीं क्या कहें, लेकिन सच में हमारे दिल की जान है प्रीति। और इंशाल्लाह हम ऐसे मिलते रहें, कुछ बैठ के कुछ मजलिस से हम यहाँ करें, और कुछ फिर लाहौर में, और अब तो मैनचेस्टर में भी हम करेंगे। राजा जमील साहब ने हाथ हिलाया है, तो मैं राजा जमील साहब, ये शायद हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं, राजू जमील, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें, वरना हम जी मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ गजाला निज़ामी फारूकी साहबा का, उन्होंने मुझे इनवाइट किया ज़ूम में, और बड़ा मज़ा आया मुझे। जितना भी मैं सुन पाया, मैं एक्चुअली नमाज से अभी फारिग हुआ था, तो बहुत मज़ेदार बातें सुनी। मुझे कासिम जाफरी साहब से बहुत मुतासिर हूँ मैं, उनका बड़ा वसी है इस मामले में तजुर्बा, और उन्होंने बहुत उम्दा बातें की। कभी पाकिस्तान, जो लोग बाहर हैं पाकिस्तान से, कभी आए पाकिस्तान, तो हमारे पास बड़ी रिच हेरिटेज है और बहुत सी उम्दा चीज़ें हैं। मैं बहुत ममनून हूँ गजाला साहबा। तो इंशाल्लाह जमील साहब, आप बस इत्मीनान रखें, बॉर्डर खुलते ही फौरन हम 40-50 के करीब आपके पास पहुंच रहे हैं पाकिस्तान। हम तो भाग के आ जाएंगे, पास है हम। बहुत शुक्रिया। नहीं, आप यकीन कीजिए, उतना ही भागकर हम आएंगे आपको रिसीव करने के लिए, चाहे आप वाघा से आए, चाहे आप एयरपोर्ट पे आए। हम आपके जहाज के पीछे भाग रहे होंगे कि आप आए हैं। हाँ, अच्छा, ये अभी ये मुझे मैसेज दिया है गजाला निजामी साहिबा ने कि राजू जमील साहब जो हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट पोएट जो हमारे उर्दू अदब के हैं, जमालुद्दीन अली साहब, उनके फर्जंद हैं, और ये हमारे लिए और फख्र की बात है। और बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने शिरकत की, और मेरी इज्जत अफजाई की गजाला ने, और आप सब ने। मुझे बड़ा मज़ा आया जितना भी मैंने इसमें ज्वाइन करके देखा। कासिम जाफरी साहब को सुना, आपको सुना, माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी सलीस उर्दू है। आप तो माशाल्लाह, हमारा तो मैं आपको बताता हूँ इस सिलसिले में थोड़ा सा, आप चूँकि जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह, मेरा सगा खालाजाद भाई है लाहौर में, उसका इंतकाल हो गया, उसकी बेटी ब्याई हुई है ननकाना में। ननकाना के जो अकरम भट्टी साहब हैं, वो मेरी जो कज़न की बेटी के शौहर हैं, यानी हमारे घर के दामाद हैं वो, और उनके बेटे राय सलीम भट्टी और राय बिलाल भट्टी, ये सब वहाँ ननकाना साहब में बड़ा एक्टिवली रोल अदा करते हैं। ये उसी फैमिली से हैं जो जिनके नाम से थी राय तलवंडी, राय भोए की तलवंडी, ये उसी फैमिली से। जी, वही राय बुलार की, मतलब उन्हीं से पूरा वो आता है ना सारा सिलसिला। और मैं तो जब वो करतारपुर का जब इफ्तिताह हुआ था, तो मैं खुद गया था तकरीब में, खास तौर पे बहुत अजीम मुशान इमरान खान आए थे वहाँ, और बहुत ज़बरदस्त। हम तो बहुत, मुझे तो बड़ी लगावट है। एक और खातून है इंग्लैंड में, सनिया नाम है उनका, वो तो पूरा सिख हेरिटेज ट्रायल लेकर आ रही थी पाकिस्तान में, तो कोविड की वजह से रुक गई। बाकायदा उनका प्रोग्राम था, पूरा एक बहुत वसी प्रोग्राम बना हुआ था। चले इंशाअल्लाह ताला ये कोविड भी खत्म होगा, पेंडेमिक भी खत्म होगा, और हम दोबारा एक ग्लोबल विलेज में दोबारा इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। और अब सबसे इजाजत, 7:30 बजने को हैं पाकिस्तान में, और 7:30 यहाँ पे। और एक बार फिर से दिल की गहराइयों से, तहे दिल से आप सबका ममनून, शुक्रगुजार, और अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, शब खैर, खुदा हाफिज।